عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم ایک بار پھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک کھولیں اور مل کے اس کو پڑھ سکیں. الحمدللہ. آج ہماری سیرہ کی جو ہے وہ 9th کلاس ہے اور ہم لوگ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، یعنی the birth of messenger صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو پہلا ماڈیول تھا جو میں نے بالکل سٹارٹ میں شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے، وہ الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا. وہ 8 ویکس پہ مبنی تھا اور اب ہمارا یہ ماڈیول 2 سٹارٹ ہو رہا ہے جو آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ 8 ویکس کے لیے، جو کہ ہمارے کمنگ جو ویکس ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ پلان رہے گا. تو تھوڑا سا شاید ایک آدھ کلاس آگے پیچھے ہو اس پلان سے، لیکن میجرلی انشاءاللہ ہمارا یہی پلان رہے گا. ہم لوگ ویک 9th and 10th میں ہوپ فلی میں آج جو ہے وہ مینلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جو ایک چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ آج ہی کور کر لوں، لیکن ویسے تھوڑا سا یہ لمبا ہے، ممکن ہے یہ نیکسٹ ویک پہ بھی چلا جائے. تو 1 یا 2 ویکس اس کے درمیان میں نے اسی لیے اس کو 2 ویکس لکھا ہے. اس کے بعد ہم جو ہمارا ویک 11 ہوگا، یعنی کہ اس ماڈیول کا جو 3rd ویک ہوگا انشاءاللہ، اس میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فینسی ٹائم تھا ان کی پیدائش کے بعد، جو ان کا ٹائم تھا اور کن کن خواتین نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا who were the milk mothers were سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس چیپٹر کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے انشاءاللہ کور کریں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ ویک ہے ہمارا وہ بنو سعد کی فضاؤں میں، یا حلیمہ سعدیہ یعنی قبیلہ بنو سعد کی طرف جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ایک ایپیسوڈ آتی ہے وہ ہم ویک 13 میں کور کریں گے. وہ شق صدر کی ہے، یا شق صدر دا سپلٹنگ آف دا چیسٹ آف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو. اور پھر 14th میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ میں واپسی ہوئی قبیلہ سعد بنو سعد سے، اور پھر جب کچھ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ یعنی حضرت آمنہ کے ساتھ گزارا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ، اور پھر ان کی قبر سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قبر بنانے میں مدد کی، اور بہرحال یہ سارا ہم دیکھیں گے. اور لاسٹ 2 ویکس جو اس ماڈیول کے ہوں گے انشاءاللہ، اس میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ ماجدہ کی وصال کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، حضرت عبد المطلب یعنی کہ جو دادا تھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب انہوں نے پرورش کرنا شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد ان کی وصال کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، حضرت ابو طالب جو کہ چچا تھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب کفالت انہوں نے کرنا شروع کی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो टाइम इंशाल्लाह हम देखेंगे। और जो लास्ट वीक होगा इस मॉड्यूल का, जो इंशाल्लाह होपफुली हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान के राउंड कवर कर लें, वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम, थोड़े बड़े होना शुरू हुए और एडल्टहुड को जब उन्होंने की ज़िंदगी शुरू की, तो जब पहली दफ़ा वो अपने पहली तिजारत के लिए हिजाज़ से बाहर निकले, तो जो बहीरा से मुलाकात थी अ, और उसके बाद हुल्फुल फ़ुज़ूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हकीमाना फ़ैसले जो थे, इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद हमारा ये मॉड्यूल कवर हो जाएगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में चले जाएँगे। बहरहाल ये क्विक सा ग्लैंस इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता हो कि वेयर वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स। जब हमें मैपिक्स अपने पता हों, तो हम थोड़े-से दिमाग में क्लैरिटी के साथ चल रहे होते हैं। तो हम लोग अ, पीछे ऑफ कोर्स हम जो कवर कर चुके हैं उसमें हम शुरू से हम लोग अ, जो फर्स्ट से 8th क्लास तक हमने कवर किया है, वो हम हर बार ही रिवाइज़ करते हैं और वो पेपर भी हमने शेयर किया हुआ है। वो काइंडली अगर आप ग्रुप में भी आप में से कोई शेयर करते ताकि या ध्यानी करवा दें एटलीस्ट शेयर करने की, क्योंकि ग्रुप तो बंद है, एडमिन ओनली है। तो इंशाल्लाह उसमें मैं शेयर कर दूँगी कि हमने पीछे सारे वीक्स में क्या कवर किया है। तो बहरहाल बगैर अब फर्दर तमहीद के हम लोग शुरू करते हैं। वो हदीस जो हम हर बार पढ़ते हैं ताकि वो अ हमारी ज़िंदगी का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हिस्सा बने। अ, हदीस सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता कि मैं उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। मुत्तफ़िक़ अलैह, बुखारी और मुस्लिम। तो अ, हमारी पूरी जो कोशिश है सीरा पढ़ने की, इट इज़ नॉट मेयर अ गेन ऑफ नॉलेज। इससे बढ़ के हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो उससे पहले जितना सिनेरियो था, प्री इस्लामिक टाइम था, उसको हम देख रहे हैं और देख चुके हैं बल्कि, और आज हम सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसआदत पढ़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले तक का जो टाइम है वो देखेंगे और ये सारा देखना और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत और ये सारा किस लिए है? ये उसके पीछे जो मकसद है, वो यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान सकें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को ना सिर्फ जान सकें, उनसे उनसे ताल्लुक़ बनाएँ, उनकी आँखों से देखना का अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ माँगते हैं हम कि अल्लाह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों को देखते थे, उनकी सीरा से जुड़ने का, उनकी ज़िंदगी से जुड़ने का, उनकी ज़िंदगी को इतनी डिटेल से देखने का मकसद ये है कि हम उसी तरीके से देख सकें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। ये आसान बात नहीं है और ना ही ये कोई आम बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह भला हम कैसे देख सकते हैं, लेकिन इसकी कोशिश ज़रूर की जा सकती है। तो इस कोशिश के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि हम जो जानने लगे हैं, वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बॉन्ड बनवा दे। हर बार हम कुछ कदम करीब तर होते जाएँ सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम शुरू करते हैं ये चैप्टर जो है आज का वलादत बा-सआदत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा-सआदत ना सिर्फ़ इंसानों के लिए बल्कि अल्लाह ताला की पूरी मख़लूक़ात के लिए बाइस रहमत व सआदत है। पूरी मख़लूक़ात के लिए बाइस रहमत व सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, वालिदा माजिदा आमना बिन्ते वहब बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, यानी जब आप पैदा हुए, तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला, जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। जो आजकल सीरिया है, ये उसके बारे में बात कर रही हैं कि हज़रत आमना ये बयान फरमाती हैं कि
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से एक ऐसा नूर निकला कि अ, जो मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए और ये जो है इसका ये मुख्तसर अल-सीरा लिल-शेख अब्दुल्ला इन्होंने अरबिक शेख हैं, अपनी सीरा की किताब में ये बात मेंशन की है। तो यहाँ से हम थोड़ा-सा अब आहिस्ता-आहिस्ता डिटेल से देखना शुरू करते हैं क्योंकि जब तक हम इस डिटेल को नहीं जानेंगे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुफस्सिरून ने वो सॉरी मुफस्सिरून कह रही हूँ, तमाम जो सीरत निगार हैं, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ सीरत निगारों ने अपनी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ का जो चैप्टर है, वो बहुत डिटेल से मेंशन किया है। बहुत वज़ाहत के साथ इसमें बिदाया व नहाया सीरत नबी इब्न हिशाम जो है असदुल ग़ाबा हैं और यही जो अभी मैं किताब मेंशन कर रही थी कि मुख्तसर सीरा लिल शेख अब्दुल्ला इन लोगों ने जो चीज़ें आज मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी, वो इन बड़ी-बड़ी सीरत की किताबों में चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं और चंद किताबें के नाम मैं इंशाल्लाह आपको और भी मेंशन करूँगी, जो रिसोर्सेज़ के तौर पे इन नोट्स के लिए यूज़ में है। बहरहाल सही हदीस में आता है कि यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बर्थ को देख रहे हैं, तो सही हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई वाज़ बोर्न ऑन मंडे एंड आई रिसीव्ड फर्स्ट वही ऑन मंडे यानी कि मेरी पैदाइश पीर के दिन की है और मुझे पहली वही भी पीर के दिन यानी मंडे के दिन ही मिली। तो ये पहला पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑथेंटिक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थ है, वो पीर के दिन की है। अ, इमाम अहमद जो हैं वो नरेट करते हैं मुस्नद में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बोर्न ऑन मंडे, ही वाज़ गिवन प्रॉफिटहुड ऑन मंडे यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी पीर को हुए, आपको वही जो है वो भी पीर को मिली। उनके उसके बाद वो फरमाते हैं कि हिजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी मदीना की तरफ वो भी पीर की है और अ जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए, यानी जिस दिन हिजरत शुरू की वो भी पीर का दिन था और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए, क्योंकि दरमियान में आपको पता है कि काफ़ी पीरियड गुज़रा कुछ मतलब काफ़ी दिन गुज़र गए थे इस ट्रैवल में, गारे सौर भी बीच में आया था। तो अ, इमाम अहमद कहते हैं कि जिस दिन वो दाखिल हुए मदीना में वो भी पीर का दिन था और जिस दिन सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ वो भी पीर का ही दिन था। तो ये उनकी पैदाइश का जो दिन था उसी दिन यानी उसी पीर के दिन ही बहुत सारे और भी अहम तरीन वाक़यात इसी दिन को हुए। उसके बाद आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो महीना था वो कौन-सा था? तो इसमें जो एक वास्ट मेजॉरिटी ने नरेशन की है यानी कि बहुत कसरत से जो चीज़ इन सीरत निगारों ने दे यानी जमहूर उनकी राय यही है कि रबीउल अव्वल का ही महीना है जिसमें सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और कुछ बहुत कम जो हैं सीरतनगार हैं वो ये लिखते हैं कि इससे हट के वो एक आध महीना बताते हैं लेकिन मेजॉरिटी एंड मुत्तफ़क़ अलैह ये बात है कि रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई। उसके बाद जो डेट की बात है उसमें एक बहुत ज़्यादा पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ नरेशंस हैं इसके अंदर और अम, अम, उसमें 9th रबीउल अव्वल का आता है, 9 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल का ज़िक्र आता है। बाज़ सीरतनगारों ने 2 रबीउल अव्वल का भी लिखा, 2nd रबीउल अव्वल का। उसके बाद 8th का भी आता है, 8th रबीउल अव्वल और इमाम मालिक ने 10 रबीउल अव्वल का लिखा है। लेकिन जो ज़्यादा पुराने या अरबिक ओल्ड जो सीरतनगार हैं, जिनमें इब्न इसहाक भी शामिल हैं जिनकी बहुत डिटेल्ड सीरा मौजूद है, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल लिखा है। तो बहरहाल हम इस पे बहस करने की पोज़ीशन में नहीं हैं, बहुत मुख्तलिफ-मुख्तलिफ
बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो हैं वो डेट्स आई हैं और हमारा जो व्यू पॉइंट होना चाहिए, हमें रिस्पेक्टफुली इस मंथ को देखना चाहिए और जो जमहूर राय आप लेते हैं, आप उसको लेते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए। लेकिन आप क्रिटिकली क्रिटिसाइज़ मतलब ना करिए दूसरों को कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आए थे। तो उनके दिन को भी, उनकी पैदाइश के दिन को भी अगर हम लोग एक-दूसरे के साथ लड़ने का बायस बना लें कि नहीं ये तो अब नई बातें लोग कर रहे हैं कि 9 को पैदा हुए थे या कुछ लोग कह रहे हैं 10 को पैदा हुए थे। तो ऐसा नहीं है ये बात, ये बहुत टाइम से ये बात चली आ रही है। अ, और ये इख्तिलाफ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में। बहरहाल रिस्पेक्टफुल ये वे यही हैं कि आप जिसको भी ले रहे हैं, आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, लेकिन दूसरे को उसको क्रिटिसाइज़ ना करिए। उसके बाद जो है ईयर यानी कि जो साल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, वो आपको पता है कि क्योंकि उस वक़्त अरब में इस तरह साल उन लोगों का पता नहीं होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अ जिस बात से, जिस चीज़ से उनकी बर्थ को वो निस्बत दी जाती है, ये मशहूर थे कि आपकी बर्थ जो है वो 50 या 55 दिन, बाज़ लोग 50 दिन लिखते हैं, बाज़ 55 दिन अब्राहा की जो उसने जो हमला किया था काबतुल्लाह पे, बैतुल्लाह शरीफ पे जो नाकाम हुआ था, तो वो हमला जब उसने किया था और वो जब मक्का के अंदर एंटर हो गया था, तो उस दिन से 50 या 55 दिन बाद सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो इंग्लिश कैलेंडर में जो हमारा ये वाला कैलेंडर है जिसके तहत हम अभी 21st सेंचुरी में हैं, इस कैलेंडर के तहत जो डेट बनती है, अब अगर आप काउंट करके बैक पे जाके अगर देखें भी कैलेंडर्स पे बैक हिस्ट्री में चले जाएँ तो तब भी आपको समझ आ जाएगी कि 25th अप्रैल 571 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बर्थ मेंशन की जाती है। उसके बाद ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और महीना और साल क्या था, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात थी। उसके बाद ये है कि चंद चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वालिदा माजिदा यानी कि हज़रत आमिना जब करीब थीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश का टाइम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब करीब था, तो चंद वो चीज़ें जो हज़रत आमिना वालिदा माजिदा जो थी, उनका क्या एक्सपीरियंस था या उनके बारे में चंद बातें, वो क्या हैं? उनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो mother of Prophet sallallahu alaihi wasallam were very close to delivery when she heard about the death of his husband. यानी एक चीज़ ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का टाइम करीब था जब हज़रत आमिना ने अपने शौहर यानी कि हज़रत अब्दुल्ला की अ, डेथ के बारे में या उनके विसाल के बारे में विसाल की खबर सुनी। तो इस पे भी डिफरेंट आरा थोड़ी पाई जाती हैं, लेकिन अक्सर यही कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का टाइम बहुत करीब ही था, जब उनके वालिद की डेथ हुई थी। अ, हज़रत आमना के चंद बहुत अहम और बहुत इंटरेस्टिंग जो हैपनिंग्स हैं, जो वाक़यात हैं, जो पेश आए उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ जब वो प्रेग्नेंट थीं, तो उनके क्या मामलात थे या उनकी तो वो कुछ सीरत निगार उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ने लिखा है। तो उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए कि सीरत की किताबों में आता है कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमल से थीं, तो वो फरमाती हैं कि मुझे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान यानी पूरे हमल के टाइम जो है, वो कोई पेन यानी उनकी शुरू से लेके आखिर तक उन्हें कोई पेन, किसी तकलीफ, किसी दर्द या किसी डिस्कम्फर्ट का कोई एहसास ना हुआ। तो ये एक डिफरेंट बात थी। अमूमी तौर पे हमें इस बात का अंदाज़ा है कि एक तकलीफ़देह पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन हज़रत आमिना इस बारे में सीरत निगार लिखते हैं कि किताबों में आता है कि उनकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। साथ ही ये भी आता है सीरत की किताबों में कि
जो हज़रत आमिना थी वो बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा करती थी और ख्वाब में बाकायदा उनसे अ, बड़े आला दर्जे की जो एक कम्युनिकेशन और दुआएँ सिखाई जाती थी और उनको खुशखबरियाँ और बशारतें दी जाती थी। इसी तरीके से एक और किताब में लिखा हुआ था कि नो एडवर्सिटी एंड नो पेन व्हाइल गिविंग बर्थ इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अ, हज़रत आमिना जो दर्द ज़ह में थीं और उसके बाद जब उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, तो उस वक़्त भी हज़रत आमिना को कोई तकलीफ़ ना हुई। तो ये वो मिरेकल्स हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ लिखे गए हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये कितने ऑथेंटिक हैं, कितने नहीं और इसके बारे में डिफरेंट आरा क्या-क्या पाई जाती हैं। मुझे थोड़ा-सा ये एक दफ़ा गो में ख़त्म करने दीजिए, फिर हम एंड पे इंशाल्लाह इस व्यू पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किस चीज़ को लेना है, किसको नहीं लेना या हमारी क्या औकात हम किस चीज़ को लें या छोड़ें। लेकिन बहरहाल इसमें मुबाहिस हुई हैं कि हमें कौन-कौन सी चीज़ को लेना चाहिए और कौन-सी को नहीं, तो उस वो भी मैं आपके सामने रख दूँगी इंशाल्लाह और जो मेरे टीचर्स थे जिनसे सीरा पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ, उनकी क्या राय थी, वो भी मैं आपके सामने रख दूँगी, ताकि आपको सारी बात का पता हो, आप अपने शरह सदर से फिर इन चीज़ों को देख सकें। उसके बाद एक एक सेकंड उसके बाद जो है वो एक हदीस मेंशन होती है और उस वो जो है, उसमें भी ये ज़िक्र आता है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट में पढ़ के भी सुनाई थी। लेकिन वो हज़रत आमिना की कैफ़ियत से पढ़ के सुनाई थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमिना बिन्त वहब बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। तो ये तो उनकी निस्बत से ये बात बताई जाती है लेकिन एक हदीस भी आती है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माय मदर सॉ अ ड्रीम व्हेन शी वाज़ प्रेग्नेंट विद मी दैट नूर वाज़ कमिंग आउट ऑफ हर वूम दैट वाज़ लिटरली लाइटिंग अप द पैलेसेस इन शाम इन सीरिया। तो क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को बयान फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे तो हज़रत आमना को ख्वाब दिखाया गया कि उनके वूम यानी कि उनके इस वूम से एक नूर निकल रहा है और वो शाम यानी जो सीरिया है मुल्क, उसके पैलेसेस जितने भी उसके महल्लात हैं वो उनको रोशन कर रहा है। तो ये एक हो गई, उसके बाद ये है कि और भी कुछ और भी ड्रीम्स आते हैं हज़रत आमिना के उसमें उसमें बाकायदा ये आता है कि कुछ ड्रीम्स के अंदर बाकायदा उन्होंने कुछ फ़रिश्तों को देखा कि वो उनको खुशखबरी सुनाते हैं कि आपने उम्मा के लीडर को कैरी किया हुआ है। यानी इस तरीके के अल्फ़ाज़ सीरत की किताबों में हमें मिलते हैं कि उनको ख्वाब में ही फ़रिश्ते दिखाए जाते और वो फ़रिश्ते उनको ये खुशखबरी सुनाते। तो गोया शुरू से ही उन्हें पता था कि जो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला हज़रत आमिना जो थीं उन्होंने जो व्हाट शी इज़ कैरिंग थ्रू ऑल दिस वो एक आम इंसान नहीं थे, वो एक उम्मा के लीडर थे पूरे के पूरे। उसके बाद जो है वो अ, एक और ख्वाब जो ये बहुत वज़ाहत से ये आपको किताबों में मिल जाएगा, असदुल गाबा में, बदाया व नहाया में भी आपको मिल जाएगा और उसमें क्या है कि अ, और ये बड़ी जामिया ख्वाब है, ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत सारा लेसन इसमें से निकल सकता है और वो क्या है कि अम, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि शी बीन एड्रेस्ड इन ड्रीम यानी ख्वाब के अंदर उनको एड्रेस किया गया, उनको मुखातब किया गया दैट यू आर कैरिंग द लीडर ऑफ दिस उम्मा कि आप इस उम्मत के लीडर को आपने उठाया हुआ है, यानी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करके।
when he जब वो पैदा ہوں گے تو ایسے کہیے کہ I put him in the protection of الواحد. یہ اب انہیں خواب کے اندر حضرت آمنہ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کے بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو آپ اس طریقے سے کہیے. کس طریقے سے کہیے؟ یہ اب انورٹڈ کامرز میں ہے کہ I put him in the protection of الواحد. میں ان کو یعنی یہ جب بچے پیدا ہو جائیں گے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ میں اس بچے کو الواحد کی حفاظت میں دیتی ہوں. اینڈ may الواحد protect him from anyone who is jealous اور حاسد. اور یہ کہ الواحد اس کی حفاظت فرمائے ہر حسد کرنے والے سے. اینڈ may he be put into the company of righteous and strong people. کتنی خوبصورت بات کہ اور الواحد سے ہی یعنی اللہ سے الواحد سے ہی وہ فردر دعا کیا کہ ان کو نیک اور صالح لوگوں کی صحبت عطا ہو اور اسٹرانگ لوگوں کی نیک اور اسٹرانگ لوگوں کی صالحین اور اسٹرینتھ والے لوگوں کی صحبت نصیب ہو. اینڈ مے he be put under the mentorship of slave of Allah who are confident strong leader of their people. اور ان کو ان کے ہاتھوں سے ان کی تربیہ ہو ان کی مینٹورشپ ان سلیوز آف اللہ کے ہاتھوں ہو ان اللہ کے بندوں کے ہاتھوں سے ہو جو کہ بہت پرعزم بہت یقین رکھنے والے اور اس امت کے لیڈر ہوں آلریڈی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں سے جو بعد میں تربیہ ہوئی اور اس کو پھر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے بھی کہ کس طریقے سے لیڈرشپ کو بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا سے سیکھنے کو ملی. اور اس کے بعد اسی دعا میں آگے یہ اینجل دعا کے اندر ہی کیا سکھا رہے ہیں کہ may he get the place on earth with no trouble and adversity at all. کہ اور یہ دعا کرنا یعنی حضرت آمنہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریے گا کہ ان کو زمین کے اوپر کسی تکلیف اور مشکل کے بغیر جگہ ملے بیکاز ہی از دا سلیو آف الحمید. کیونکہ یہ الحمید یہ اللہ کی طرف اللہ کا نام الحمید الحمید کے بندے ہیں الحمید کے غلام ہیں. اور الحمید کون ہے آپ کو پتا ہے نا کہ کانسٹنٹلی جس کی تعریف کی جائے. اینڈ آگے کیا الماجد he is the slave of الحمید and الماجد کہ یہ بہت زیادہ تعریف کیے جانے والے کے بندے ہیں اور الماجد بہت زیادہ میگنیفیسنٹ اور گلوریس رب کے بندے ہیں. اینڈ فائنلی کیا آخری بات کیا کہ until he is shown or witness what he is meant to witness mean receiving the prophethood. یعنی اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے الحمید الماجد ان کو اپنے پروٹیکشن میں رکھیں یہاں تک کہ ان کو وہ مل جائے جس کے لیے جو الٹیمیٹ ان کی مطلب کلائمیکس ہے ان کی زندگی کا اور وہ کیا ہے نبوت. تو سبحان اللہ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو خواب میں آ کے فرشتے سکھا رہے ہیں حضرت آمنہ کو کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو ولادت بسعادت ہو تو اس کے بعد آپ یہ مانگیے. تو آپ ذرا گن کے دیکھیے کہ ہم تو شاید ساری زندگی میں کبھی الگ الگ اوقات میں بھی یہ دعائیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے نہ مانگی ہوں. تو اتنی کبھی چیز سکھائی گئی کہ آپ سب سے پہلے الواحد جو اکیلا ہے اس کی پروٹیکشن میں دینے کی بات ہوئی. اس کے بعد حاسدین کے حسد سے بچانے کی بات ہوئی کہ الواحد اس کو حاسدین کے حسد سے بچائے. We have to learn this for our children as well. اور پھر صالحین کی صحبت آپ کو پتہ ہے جتنے بھی صالحین متقین اسلاف گزرے ہیں جو سب سے قیمتی اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ صالحین کی صحبت مانگی نیک لوگوں کی صحبت مانگی. تو دیکھیں ان کی والدہ ماجدہ کو یہ بات ان کی پیدائش کے وقت سے پہلے سکھائی جا رہی ہے کہ ان کے صالحین کی صحبت مانگیں ان کے لیے. تو پھر دیکھیں نا کہ یہ دعا جو ہے وہ اپنے
अंजाम तक कैसे पहुँचती है कि कैसे सहाबाए किराम कैसी सोबतें मिली सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वो कैसी सोबत बने उनके लिए, सुब्हान अल्लाह। बहरहाल और और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की तैयार की हुई आर्मी थी। अल्लाह सुब्हानहू सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जिब्राइल अमीन की सोबत मिली, उससे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिली, तो क्या-क्या सोबत ना मिली उनको। उसके बाद जो है वो दुआ में अगला जो पार्ट है क्या कि इनको ना सिर्फ़ सालेहीन सोबत नेक लोगों की सोबत अता करें, नेक और मज़बूत दिल लोगों की सोबत अता करें, करज वाले लोगों की, बल्कि साथ में और क्या कि ऐसे लोगों की लीडरशिप, ऐसे लोगों की मेंटोरशिप नसीब हो जाए। हम भी तो अतालीक ढूँढते हैं ना आज अपने बच्चों के लिए, आज तो हमें अतालीक का लफ्ज़ भी नहीं पता एक्चुअली। कि जो मेंटोर बन सकें हमारे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो वो माँग रही हैं। तो ये हमें माँगना चाहिए कि मेंटोर अल्लाह ऐसे अता कर दें, जो खुद बेहतरीन लीडर्स हों ताकि लीडरशिप की जो है वो मेंटोरशिप अपने मेंटोर से वो सीख लें। और उसके बाद ये कि ज़मीन के ऊपर उन्हें कोई ट्रबल और एडवर्सिटी यानी तकलीफ और मुश्किलें ना आएँ और फिर ये बात कि अल-हमीद और अल-माजिद जो है उसकी हिफ़ाज़त में रहें सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्यूटीफुल दुआ। तो अल्लाह करे कि हम इसमें से सीखने वाले बन जाएँ और हम ये अपने बच्चों के लिए और अपनी नस्लों के लिए, अपनी ज़ुर्रियत के लिए ये माँगे। बहरहाल ये वाली बात हम पढ़ क्या रहे थे? हम ये कह रहे थे कि हज़रत आमिना को ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही सिखाई गई चंद बातें, उनमें से एक बात, एक ये डिटेल और जामे बात सीरत नगार लिखते हैं कि ये बात जो फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ने पहले ही सिखला दी थी। उसके बाद अ, अब आते हैं हम इस पॉइंट पे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, वलादत का वक़्त था, तो उनके पास हज़रत आमिना के पास कौन-कौन मौजूद था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त अ अ, 2 ख़वातीन के बारे में आता है कि दे वर असिस्टिंग इन चाइल्ड बर्थ और वो कौन थी? एक शिफ़ा उनका नाम आता है। शिफ़ा और वो कौन थी? वो मशहूर सहाबी जो अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, उनकी वालदा। तो ये मौजूद थीं हेल्प करने के लिए और दूसरी जो थीं उनका नाम नहीं है मेरे पास मिसिंग आउट हुआ, मुझे मिल नहीं सका। वो थी उस्मान बिन आस की वालदा, मदर ऑफ उस्मान बिन आस। तो अ, जो उस्मान बिन आश जो थे इनकी वालदा कहती हैं कि when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, she couldn't see anything but नूर in whole house. यानी जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो पूरे घर के अंदर नूर जो है वो भर गया और इसके सिवा नूर के सिवा यानी और घर में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरीके से जो शिफ़ा हैं, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा जो हैं, वो कहती हैं कि व्हेन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बोर्न, वन समवन प्रोक्लेम्ड यानी आवाज़ आई कि हैव मर्सी ऑन यू कि आपके ऊपर रहमत है और ये या इस आवाज़ के बाद जो है वो नूर एनलाइटेंड ऑल अराउंड के हर तरफ जो है वो जगह नूर और नूर से भर गई। तो इसी तरीके से कुछ नरेशंस अब आप प्लीज़ मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ इधर रोक के दोबारा मैं आपको एक बात की याद दहानी कराने लगी हूँ कि हम आगे अभी भी जाके और आगे भी जाके देखते हैं कि इनके बारे में हमें कितना लेना चाहिए और कितना नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए बेयर विद मी। लेकिन जो बहुत मशहूर मुफस्सिर तफ़सीर कह रही हूँ, सीरत निगारों ने लिखा है, उन चीज़ों को सामने रखना और उनको जानना ज़रूरी है। तो एक और नरेशन में आता है मैंने पहले सोचा था आई एम नॉट गोना बी टेलिंग यू दो कि हमारे मेरे शेख ने जब हम सीरा पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्लैरिटी से इसको वो किया था लेकिन मैं आपके सामने बहरहाल रख देती हूँ ताकि आपको पता हो इस चीज़ का कि सम नरेशंस इवन टॉक दैट व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न
جیسے ہی وہ پیدا ہوئے تو لٹرلی واز سٹنگ ڈاؤن آن ہز نیز کہ جیسے ہی پیدا ہونے کے بعد ان کی جو پہلی پوزیشن ایک دم تھی وہ کیا تھی کہ وہ اپنے نیز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ جیسے ہم تشہد بیٹھتے ہیں نا تو یہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اینڈ his eyes were wide open and staring at skies تو اور ان کی آنکھیں جو آنکھیں مبارک تھیں وہ پوری کی پوری کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں یا اوپر کی طرف دیکھ رہی تھیں اب جو ابن اسحاق ہے نا وہ ایک بہت مشہور گزرے ہیں سیرت نگار اور ان کی کتاب کو ایک بہت بڑی ریسورس سمجھا جاتا ہے جب بھی سیرت پڑھی یا پڑھائی یا لکھی جاتی ہے تو ہمیشہ ہی لوگ اس کو ریفر بیک کرتے ہیں اور ان کی کتاب میں ایکچولی یہ سائنس لکھے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو اوپر 4-5 پڑھ کے سنائے ہیں نا ان کی کتاب کے اندر یہ سائنس مینشن ہوئے ہیں دو کہ کچھ لوگوں نے ان کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ شاید اوتھینٹک نہیں ہے لیکن بحث کرنے والے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہے اور جو اوتھینٹک کتابیں جن کو مانا جاتا ہے ان کے اندر جو یہ نریٹ ہوئی ہے ان کی تعداد کچھ زیادہ ہے بہرحال واللہ عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو بہتر جانتے ہیں میں جو مختلف اور مشہور کتابوں میں جو لکھا اور جو ایک بہت اوتھینٹک اسکالر سے پڑھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور ساری ساتھ میں عربی آپ کے سامنے رکھتی جا رہی ہوں اس کے بعد جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی یعنی کہ وہ آپ کی پیدائش ہو گئی اس کے بعد کیا کہ ان کے جو میل گارڈین تھے وہ کون تھے ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ والد تو نہیں تھے دادا تھے حضرت عبد المطلب تو ان کو بلوایا گیا اور جب انہیں بلوایا گیا تو انہیں پھر یہ چند چیزیں بتائی بھی گئیں کہ جو ان خواتین نے وٹنس کی یا جو حضرت آمنہ نے وٹنس کی تھیں ان کے برتھ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ کے دوران وہ حضرت آمنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو بعد میں کچھ ٹائم کے بعد عبد المطلب کو بتایا تھا کہ ان کی اپنی کیا کیا آبزرویشن تھی یا کیا انہوں نے دیکھا لیکن جو باقی خواتین تھیں انہوں نے اظہار کر دیا تھا کہ ہم نے یہ چیزیں وٹنس کی ہیں اور حضرت آمنہ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے چند خوابوں کا بھی پھر اظہار کیا مطلب جب ایک بڑی پہلے تو مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ چلیں خواب ہی ہیں خواب اٹس اوکے لیکن جب پیدائش کے بعد جب انہیں کلیئرٹی ہو گئی کہ یہ تو کچھ عام بات نہیں ہے یہ ڈفرینٹ ہے پھر آتا ہے لکھا ہوا کہ حضرت آمنہ نے پھر اپنے پچھلے خواب جو تھے وہ بھی سنائے عبد المطلب کو اس کے بعد یہ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جو عبد المطلب ہیں وہ بیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اٹھا کے لے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعا بھی کی اور کچھ اسکالرز نے باقاعدہ اس کو پوئٹری میں مینشن بھی کیا ہوا ہے اور دو آرا آتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک آتی ہے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت آمنہ کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ نیم یور چائلڈ محمد تو انہوں نے محمد نام سجیسٹ کیا تھا لیکن ایک اور جگہ مطلب بہت نریشنز میں کچھ جو اور نریشنز ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا اب اس نام کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ محمد واز محمد دا نیم یہ جو نام ہے اٹ واز ویری ویری ریئر نیم ایٹ دیٹ ٹائم کیونکہ وہاں پہ کامنلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے جیسے حرب صخر حمزہ طلحہ اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کی شان ہے کہ اسی کی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا گیا تو محمد کا کیا مطلب ہے یہ اور یہ کہاں سے ڈرائیو ہوا یہ شاعر جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نے ایک شعر میں اس بات کو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وشک لہ من السمع
वशक्क लहू मिनस्मिही लियुजल्ला फजुल अर्शी महमूदिन वहाज़ा मुहम्मद। अल्लाह ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बढ़ाने के लिए उनका नाम अपने नाम से निकाला। चुनाचा अर्श वाला महमूद यानी अर्श वाला अल्लाह ने अपना नाम महमूद रखा है, अर्श वाला महमूद है, तो पैगंबर का नाम मोहम्मद रखा। तो ये एक बड़ी बात है कि अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने ही नाम से डिराइव किया और अ, अ, मोहम्मद का नाम ही है कि बहुत कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली बहुत ज्यादा प्रेज किया जा तारीफ किए जाने वाले। तो अब आप देखिए कि ये अल्लाह का फजल है सुभान अल्लाह कि आज दुनिया में सबसे उस वक्त जो नाम बिल्कुल पहली दफा सुना गया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो उसके बाद आप देखिए कि आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन नाम है वो मोहम्मद है और टिल द लास्ट डे द मोस्ट प्रेज्ड वन जो सबसे ज़्यादा तारीफ किए जाने वाला नाम वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है भी और होगा भी। अल्लाहु अकबर। और हदीस में सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आई हैव मेनी नेम्स, आई एम मोहम्मद, आई एम अहमद, यानी मेरे बहुत सारे नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं हाशिर हूँ और मैं मुहय्यी हूँ और मैं आकिब हूँ और मैं खातिम हूँ। तो ये नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपने बताते हैं और हमें पता है कि कुरान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। मुज़्ज़म्मिल, मुद्दस्सिर, मुनीर, यासीन, बशीर, ताहा, सिराज, सिराजुन मुनीरा, तो ये सारे नाम भी बहरहाल कुरान के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते हैं। सो हमें जो एक चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि अल्लाह इज़ महमूद एंड ही इज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। उसके बाद जो नाम रखने के बाद जो बात आती है, क्विकली सा इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इसको मेंशन किया है अ, सीरत में इसको हमेशा जगह दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्कमसिजन यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतने करने के ऊपर जो बात आती है उसमें हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न सर्कमसाइज्ड कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए तो वो सर्कमसिजन हुए हुए थे। ये एक तरफ आता है और कुछ और जो लोग व्यू होल्ड करते हैं एक और शायद नरेशन के तहत वो ये है कि ही वाज सर्कमसाइज्ड बाय अब्दुल मुत्तलिब के हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यानी उनके दादा ने उनको उनके खतने किए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि ऑन सेवेंथ डे ऑफ बर्थ जो 7वां दिन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद उस दिन एक बहुत बड़ा ग्रैंड फीस्ट रखा गया और एक ग्रैंड यानी एक सेलिब्रेशन रखी गई एंड उसमें सारे मक्का को इनवाइट किया गया था। जैसे हम लोग हकीका करते हैं ना, जैसे हम लोग हकीका करते हैं, शायद ये उस तरह की कोई चीज़ उस प्री इस्लामिक टाइम में भी पाई जाती हो और वहाँ पे फिर अ, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ को बहरहाल सेलिब्रेट किया गया। अब इस सेलिब्रेशन को अगर आप देखें तो कुछ लोग तो इसके बारे में यानी अब अगर मौलिद आपने सुना होगा, हम तो मिलाद कहते हैं ना पाकिस्तान और सब बड़े सगीर में, तो मिलाद का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अरब उसमें देखें ना तो उसको मौलिद कहते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से रिलेटेड जो खुशी मनाना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। तो उसको थोड़ा-सा छोटा-सा टच कर लेते हैं यहाँ पे कि जो मौलिद है, उसमें भी 2 राय पाई जाती हैं। एक तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में उस स्पेसिफिक हर दिन ही आप मैं मेरी पर्सनल तो ये राय है और मैं बताती होती हूँ, अक्सर ही मैं इस पे बात करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो ऐसी है कि हर दिन ही अ अ जितनी खुशी मनाई जाए, जितनी उनकी ज़िंदगी की इत्तिबा की जाए, जितना लम्हा-ब-लम्हा अपनी ज़िंदगी को अ अ
उनके नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश की जाए इतनी कम है। तो वो हमारे लिए हमारे अल्फ़ा हैं, हमारे लीडर हैं, तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश हर दिन, हर लम्हे, हर घंटे में एक्चुअली और खुशी से करनी चाहिए। तो वो खुशी तो अपनी जगह, लेकिन ये है कि लेकिन ये है कि जो आरा पाई जाती है मौलिद के बारे में वो ये है कि अगर कुछ लोग जमा होके ट्रेडिशनली क्लासिकल स्कॉलर्स भी इस तरह किया करते थे कि उसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास दिन में जिस दिन वो दिन था, मुबारक दिन था, जिस दिन पैदा हुए थे, अगर वो लोगों को तालीम दे रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं और उनके ऊपर सलावात भेज रहे हैं, जैसे दुरूद पाक भेज रहे हैं और उनकी लाइफ की को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी क्या-क्या अ अ, सुन्नतें हैं, उनकी ज़िंदगी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद और फिर उसको किस तरीके से हम क्लोज़ली देख सकते हैं, उस पे अमल करें। तो इसके बारे में जो है वो क्लासिकल स्कॉलर्स भी कहते हैं कि इसकी इजाज़त है। अगर ये सेलिब्रेशन इस नौइयत की है कि वी आर गेटिंग क्लोज़ टू हिम बाय लर्निंग हिज़ सुन्नह, बाय लर्निंग हिज़ द पर्पस ऑफ हिज़ लाइफ, बाय एक्नॉलेजिंग जो ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ किया उसको एक्नॉलेज करने का की बात है, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो इसको मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए, ना ही हम इस बात को मानते हैं और वो अपने आप को सलफ़ कहते हैं। अर्ली जनरेशंस में भी बहुत सारे लोग हमेशा यही कहते रहे कि नहीं, किसी ख़ास दिन में नहीं मनाना चाहिए। मेरे जो स्कॉलर थे वो ये बात इस 2 आरा को रखने के बाद वो ये कहते होते थे कि आप दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़ दें। यानी जो और मुझे अच्छी लगती थी एक्चुअली उनकी ये राय कि एक तरफ तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो मिलाद या मौलिद को मना रहे हैं, यानी वो इवन इस हाल तक आ गए हैं कि केक काटते हैं और आपको पता ही है फिर उसके साथ क्या-क्या तमाशे और क्या-क्या अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं। तो कितना एक्सट्रीम लेवल का और कितना पैसे का ज़िया और कितना अजीबो-गरीब हरकतें हैं और हमारे बरे-सगीर में तो होती ही होती हैं ये। तो इससे बचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे दरमियान हों, तो उनको ये कभी भी अमल पसंद आएगा। हर चीज़ को परखने के लिए ना उसूल ये होना चाहिए कि बस इतनी-सी फीलिंग लाने की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे दरमियान हो, तो उनको ये बात पसंद आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर करना चाहिए और दूसरी तरफ जो बहुत रिजिड लोग हैं, माज़रत के साथ जो बहुत शदीद फ़तवा देते हैं मेरे शेख उनके बारे में ये कहा करते थे कि वो लोग भी दुरुस्त नहीं हैं, कि नहीं हम तो इस दिन को अगर बैठ के कोई पढ़ पढ़ के कोई सीरा के चंद एस्पेक्ट ही हाइलाइट कर रहा है, जो अमूमी तौर पे भी करते हैं, लेकिन इस दिन में अगर कोई थोड़ा-सा एहतमाम कर लिया कि आए मिल के बैठ के चलो थोड़ी देर एक्स्ट्रा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें, वो चीज़ें जो आज हमें ज़िंदगी में रिवायत करनी है, उनका आज इस दिन के तवज्जुद से आज ज़्यादा रिव्यू कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से उनके ज़्यादा करीब हो सकें, उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ जो है इसके कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोनों जो है और ये बड़ी अ अ बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच है मेरे अंदाज़े में और मेरे शेख के अंदाज़े में। तो बहरहाल आप लोगों की अपनी राय है, हम इस एक्सट्रीमिज़्म के तहत भी लोगों को बहुत काटते हैं। जो मना रहे हैं हमने उनको काट छोड़ना है और जो नहीं मान रहे वो इतने सख्त हैं कि वो मतलब अपने उस पे अड़े हुए हैं और अटके हुए हैं। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ने के लिए आए थे, इकट्ठा करने के लिए आए थे, अपनी उम्मत को अ यकजा और हनीफ़न मुस्लिमन की तालीम देने आए थे। हम उन्हीं उन्हीं के बर्थडे को भी इवन बर्थडे यानी बर्थडे नहीं लेकिन डे ऑफ बर्थ कह लें। डे ऑफ बर्थ यानी कि जो उनकी पैदाइश का दिन है, हम उसके ऊपर भी लड़ देते हैं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसलिए एटलीस्ट हम लोग ये बैठ के समझते हैं कि हमने किसी को काटना नहीं है। हाँ, ये इस्लाह ज़रूर करें कि जो लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाके हरकतें दोनों ग्रुप्स में करते हैं, उनकी जाके थोड़ी-सी ज़रूर उनके सामने एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट रख दें
کہ بجائے ان ایسی چیزوں کے جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے، اس کے بجائے ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں کنیکٹیوٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی راہ جو ہے نا وہ ایک اچھی میرا خیال ہے کوشش ہوگی اگر ہم اس کو انشاءاللہ العزیز زندہ کر سکیں تو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کچھ اور چیزوں کو۔ یہ بھی بہت کتابوں میں بہت کثرت سے یہ بات مینشن ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ there are some of the کچھ scholars نے they debated on some of the miraculous happenings in around Arab at the birth time of سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت دنیا میں یعنی ارد گرد کی جو دنیا تھی حجاز سے باہر بھی، حجاز تو سارا عرب لینڈ تھا نا، تو اس کے ارد گرد آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسر و کسرات تھے، یعنی زورسٹینز تھے اور وہ تھے سیریا تھا، اور مطلب بڑی بڑی جو تھیں وہ سویلائزیشنز they were going on مطلب دنیا میں چل رہی تھیں وہ اس وقت میں۔ تو ان میں کیا چینجز آئے اس کے اوپر بھی اگر آپ سیرت کی جو ڈیٹیل کتابیں ہیں تو آپ کو ایک ڈیٹیل چیپٹرز اس کے اوپر ملیں گے، تو اس میں سے چیزیں سامنے آپ کے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ پورا ہمارا چیپٹر کور ہو جائے۔ اس میں سے پہلی چیز جو مینشن ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر دوبارہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو چیزیں بتانے لگی ہوں ان کو کہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ سیرہ ابن اسحاق، سیرہ ابن شام، سیرہ ابن کثیر، یہ ان کتابوں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں۔ تو اگر آپ کو لگے نا کہ نہیں یہ تو بہت ایگزیجوریٹڈ یا یہ تو بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں تو آج نہیں اب تو اتنے اسکالرس بات نہیں کرتے، تو اب بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنے پیمانے کو ہمیں اوپر اٹھانا پڑے گا۔ جو بہت زیادہ الحمدللہ اسکالرز میں نے پہلے بھی ذکر کر لیا ہے، ابھی ہی کیا ہے کہ جن سیرت کی جن کتابوں اور جن اسکالرس کے بغیر کوئی نئی کتاب لکھی نہیں جا سکتی، ان کے ریسرچ کے بغیر، ان کے کام کے بغیر نئی کتابوں کا ہمیں شاید چل ہی نہ سکیں، لکھ ہی نہ سکیں، ان کتابوں میں یہ چیزیں مینشن ہوئی ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ابھی مینشن کرتے ہیں۔ تو پہلی کیا چیز ہے کہ جو زورسٹرنز تھے یعنی کہ پرشین کسرا جن کو کہا جاتا ہے کہ who worship fire، وہ کیا کرتے تھے؟ آگ کو جو پوجنے والے تھے زورسٹرینز، they were worshipping one specific fire that was وہ جو ایک اسپیسیفک آگ کو پوجتے تھے جو 1000 سال سے جل رہی تھی، 1000 سال سے ایک آگ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات کو وہ آگ جو ہے وہ لیٹ آف ہو گئی تھی، آگ جو تھی وہ کیا ہو گئی تھی؟ وہ بجھ گئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو ایک ہیپننگ ہوئی جو حیران کن حد تک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ذرا سا بھی نکال کے پڑھیں کسرا کو یا پرشین امپائر کو یا زورسٹرین اس ٹائم کو، تو وہ مطلب اس کے گرد لوگ ہوتے تھے جو اس وقت ہر وقت اس کو جاری و ساری رکھتے تھے، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، یعنی ہاؤ کم اٹ ہیپنڈ آؤٹ آف بلو، اٹس اے میریکل ہیپننگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ساتھ ہی وہ آگ بجھی اس رات کو۔ اس کے بعد جو دوسری ایک چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو دریائے دجلہ، the river of Tigris، وہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کافی تیز بہتا ہوتا تھا، تو وہ اس خاص شب میں یا رات میں یا اس کے آگے پیچھے کے ٹائم پہ اس کی ٹائڈز انتہائی لو چلی گئی تھیں، یہاں تک کہ جو اس سے اریگیٹ ہوتی تھیں جگہیں، جو ارد گرد پانی وہ دیتا تھا دوسری جگہوں پہ اریگیشن کے لیے، وہ پانی بھی جانا کیا ہو گیا؟ وہ بند ہو گیا۔ تو یہ بھی ہیپننگ اسی رات اور اسی دن اور اس ٹائم کے ارد گرد ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے جو پہلے ایک بات آ بھی چکی ہے کہ آل دا وے سیریا تک بھی ایک برائٹ لائٹ کو جو ہے وہ وٹنس کیا گیا، یعنی ایک طرف تو ہم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی اور پھر جو حضرت فاطمہ تھیں
सॉरी हज़रत आमिना जो वालिदा माजिदा थीं, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने वूम से ये लाइट निकलते देखी, ये जो सीरिया तक के महल्लात को रोशन कर रही है, वो तो हमने देखा, लेकिन दूसरी तरफ सीरत निगारों ने ये लिखा है कि पैरेलली हिस्ट्री की किताबों में ये लिखी बात आई है कि इस फलाँ रात को यानी कि वो जो 571 अप्रैल की जो 571 की कोई ख़ास रात थी, उस रात में विटनेस किया गया कि बहुत ब्राइट हिजाज़ से एक बहुत ब्राइट रोशनी उठी है, जो कि सीरिया के लोगों को भी नज़र आई। तो ये मुतअद्दिद जगहों से ये बात विटनेस करके बाद में हिस्ट्री की किताबों में भी हिस्टोरियंस ने लिखी है। इसी तरीके से कसरा का जो था महल था, उसके अंदर जो उसकी बहुत सारी जो बालकनीज़ थी, उसके जो वो बाकायदा टूट के गिरी और कुछ जो थे उनके पिलर्स भी गिर गए उसके उनके महल के। इसी तरीके से कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज तरह के लोग ख्वाब देखने इन्हीं दिनों के अंदर या इस ख़ास दिन के आगे-पीछे और जिस रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बहुत सारे स्ट्रेंज ड्रीम्स देखे गए और इस तरीके से वो इंटरप्रेट हुए क्योंकि आपको पता है उस वक़्त लोग जो है वो इंटरप्रिटेशंस लिया करते थे बहुत कॉमनली और नॉर्मली। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन दी गई उन्हें कि हिजाज़ के एरिया में कुछ ख़ास हो रहा है, इस वजह से इर्द-गिर्द जो है वो हर हर तरफ बहुत रेस्टलेसनेस है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह से सारा की सारी हिल रही हैं, क्या बड़ी, क्या छोटी, क्या लोगों के ड्रीम्स, हर चीज़ एक कुछ अजीब नोयत की थी। इसी तरीके से जो रेस्टलेसनेस इज़ गोइंग ऑन इन द किंगडम्स अराउंड बिकॉज़ ऑफ द बर्थ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और चीज़ थी कि वन ऑफ द वेरी वाइज़ मैन एक बहुत उस वक़्त का एक अ, एक फ़हम-ओ-फ़रासत वाला या अक्लमंद शख़्स था, उसका नाम था अब्दुल मसीह। अब्दुल मसीह, उसने जब ये सारी चीज़ें और कुछ ख्वाब सुने, तो उसने ये ताबीर दी थी कुछ ख्वाबों की और इस सारे हालात की, वो ये थी कि जो आखिरी नबी हैं, जो प्रोफ़ेसाइज़ हुए थे, जिनके बारे में ज़िक्र किया गया था पिछली किताबों के अंदर, वो उनकी पैदाइश हो गई है। तो ये जो अब्दुल मसीह थे, इन्होंने इस बात को क्लैरिटी से बता दिया कि ये जितने भी साइन एंड सिम्पटम्स हैं बात इससे वाज़िह होता है कि हिजाज़ के अंदर या अरब लैंड्स में जो एक प्रॉफ़िट ने आना था, वो आ चुके हैं। इसी तरीके से अब्दुल मसीह ऑल्सो जब ये बात हुई तो इस सारी हैपनिंग्स के तहत एक चीज़ और ही प्रोफेसाइज़्ड एक और बात बतलाई और वो क्या थी कि कसरा के जो हैं यानी पर्शियन जो किंग्स हैं, वो आने वाले कुछ टाइम में थोड़े ही अरसे में 14 किंग्स बदलेंगे, 14 किंग्स। यही प्रोफेसाइज़ दिस कि 14 किंग कसरा के बदलेंगे और उसके बाद जो है वो पर्शिया का लैंड या इसकी सिविलाइज़ेशन खत्म हो जाएगी। तो ये एग्ज़ैक्टली वैसे ही हुआ। इतनी रेस्टलेसनेस थी और बाद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम मतलब सॉरी अगले 4 साल तक इस जो जब इसने प्रोफेसाइज़ किया इस बंदे ने यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तो 4 साल में सिर्फ़ 4 साल में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 4 साल के थे, तो इन 4 साल के अंदर-अंदर जो कसरा यानी पर्शियन के अंदर 10 एम्परर्स बदले। इतना वो हालात उनके जो थे वो क्या थे अनस्टेबल थे और जो रिमेनिंग 4 थे क्योंकि प्रोफ़ेसी किस चीज़ की थी 14 की थी, तो जो रिमेनिंग 4 थे वो फिर कब तक आए फिर वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत जब थी उस वक़्त तक अगले 4 चले और फिर आपको सबको हमें पता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के टाइम जो खिलाफत का वक़्त था, उस वक़्त जो अल्टीमेटली कसरा जो था और यानी पर्शियन लैंड्स जो थे वो कंकर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी इस्लाम आ गया था। तो मुझे जो चीज़ बहुत फ़ैसिनेट कर रही थी वो ये थी कि सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम 3000 साल पुरानी जो थी ना वो सिविलाइज़ेशन थी ज़ोरास्ट्रियन सिविलाइज़ेशन जो थी, यानी जो आग को पूजते थे। तो 3000 साल पुरानी जो सिविलाइज़ेशन थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऊपर ही यानी वो जो बेसिक लेवल की रेस्टलेसनेस थी या उनके पिलर्स उनके महल के गिर जाना या उनकी बालकनीज़ का टूट जाना और ये चंद चीज़ें
اور اس کے بعد اتنی ریسٹلیسنس ہو گئی ان کی کہ 10 سالوں کے اندر ان کے 4 سالوں کے اندر ان کے 10 کنگز جو ہیں وہ بدلے، اور پھر آنے والے چند سالوں میں یا سمجھ لیں 2 ڈیکیڈز میں ان کے 2 سے 3 ڈیکیڈز میں ان کی ساری کی ساری سویلائزیشن ختم ہو گئی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے چند ڈیکیڈز تک یہ بات ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اسلام کے آنے سے یہ بات ہو سکتی ہے، تو پھر آج ہم دنیا میں اس آس اور اس امید کے ساتھ کیوں نہیں جی سکتے؟ کیا آج کی سویلائزیشنز، آج کے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ کیسر و کسرا سے بڑے ہیں؟ کیا ان کی جو کوئی ایسی سویلائزیشن، آج تو ورلڈ پاور جو ہے وہ امریکہ ہے، ذرا امریکہ کی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیے گا، اور ذرا اٹھا کے تو دیکھیے گا کہ یہ بنا کب ورلڈ پاور؟ ابھی اس سینچری کے اندر بھی 2-3 ورلڈ پاورز چینج ہوئی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے۔ اور اس کے مطلب 21 کے تو اندر نہیں، لیکن پیچھے یعنی پچھلے لاسٹ 100 ایئرس کو اگر آپ دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا کچھ اتار چڑھاؤ آیا، کتنے کتنے ڈفرینٹ نام بدلے جو اوپر گئے اور نیچے ہوئے۔ تو ٹیکنگ اے ویری، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈرائی پارٹ پڑھ رہے تھے ہم، تو ٹیکنگ اے لٹل انرجی آؤٹ آف اٹ از کہ سبحان اللہ، ڈرائی میں نے اس لیے کہا خالی کہ مطلب ہسٹورک بیس تھا نا، اس میں عملی اینگل سے ہم کم چیزیں دیکھ رہے ہیں، باقی تو کچھ بھی اس میں ڈرائی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کو دیکھ رہے تھے، لیکن مراد یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس وقت یہ ہو سکتا ہے تو آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آج اگر ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور ہم اس قرآن کا جو اللہ نے نظام دیا قرآن کے ذریعے سے، آج اگر ہم اس کو سمجھ کے اپنی، ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے ارد گرد اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرنا شروع کر دے، کہیں ہم 20 لوگ کریں گے، کہیں 50 کریں گے، کہیں 100 کریں گے، آج اگر ہم یہ بیج بونا شروع کر دیں ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ پہلی دفعہ یہ سارا کچھ ہوا تھا، اسلام جب پہلی دفعہ، جیسے ہم ریولیشن آرڈر میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو پہلی وحی جب آئی تھی اور اس کے بعد سارا کچھ ہوا، تو کیوں نہیں؟ کیا وہ آج اللہ ہمارے لیے اللہ نہیں ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، کیا آج وہ آیت ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے کہ جو آج اللہ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا، ان تنصر اللہ، اللہ نے اپنے دین کے لیے کھڑے ہونے والوں کو اپنی طرف مددگار کہا، ینصر اللہ، اللہ ان کی مدد کرے گا، کیا یہ آج ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو مجھے لگا کہ بہت ایک دم جو ہے نا دل کو واپس کھڑا کر دیتی ہے۔ ہاں ٹائم لگ سکتا ہے، ہاں ہم لوگوں نے بہت غفلتیں برتی ہیں، ہمارے بہت ساری صدیوں سے ہم شاید سوئے ہوئے تھے، اور اسپیسیفکلی ہم آج زیادہ ہی مطلب ادھر ادھر کے جو سویلائزیشنز ہیں اور ادھر ادھر کے جو سسٹمز جو دنیا میں چل رہے ہیں، ہم ان کو فالو کر کے اپنا آپ بالکل کھو بیٹھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے دیر از اے دیر از این ایمبلم ڈاؤن دیئر، وہ چنگاری موجود ہے، بس کچھ لوگوں کو ہی تو مل کے وہ پورے طریقے سے اس پھونک کو، اس ایمبلم کو، اس چنگاری کو واپس جو ہے وہ ایشز ہٹانے ہیں، پھونک مارنی ہے، اور واپس جو ہے اس آگ کو بھڑکانا ہے۔ سب کچھ موجود ہے، سب رو کیا آخر تک وہ اللہ جو ہر لمحے ہر قدم پہ ساتھ دے گا، مدد کرے گا، کھڑا کرے گا، پلان دے گا، پلان کو فلفلمنٹ کروائے گا، سب کچھ موجود ہے۔ بیچ میں سے اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو ہم اور آپ ہی نہیں کھڑے ہوئے۔ تو ہم اس لمحے پہ اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے ہم ہر دھر پہ جھک گئے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جن کی پیدائش پہ اتنی اتنی بڑی سویلائزیشنز ہل گئیں کہ اتنی دور کھڑے ان کے جو فزیکل چیزیں تھیں وہ بھی، ان میں بھی دراڑیں آ گئیں، وہ بھی پلرز گر گئے، تو ان کے آج ہم امتی، اور آج ہم کوئی ڈر نہیں ہے جس کے سامنے جھکے ہوئے نہ ہوں ہم، خوف کے غلبے، حرص و خوف نے ہمیں آ لیا۔ تو بہرحال، اور پھر بس آخری بات یہاں پہ میں یہ کروں گی کہ جو ریبائز تھے یا منکس تھے، یا جو اس وقت کے جو کرسچن ورلڈ سے جو لوگ
क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो कर रहे थे, यानी उस वक़्त का जो रिलिजन था, जो भी प्रैक्टिस वो तो क्रिश्चियनिटी था। तो जो रैबाइज़ और मंक्स थे, 2 के अपने असल रिलिजन पे बहुत कम लोग कायम रह गए थे, यानी क्रिश्चियनिटी में से या ईसाइयत में से। लेकिन उन लोगों में से भी बहुत सारों ने प्रोफ़ेसाइज़ किया इस टाइम के दौरान कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई और उसके जो इमीडिएट इसके बाद का जो टाइम था, तो उन लोगों ने भी इस बात को महफ़ूज़ किया कि बल्कि किताबों में लिखा आता है कि उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ ख़ास किस्म का स्टार, कुछ रबाइज़ और मंक्स ने मेंशन किया कि उन्होंने आसमान के ऊपर एक ख़ास किस्म का स्टार देखा है इस टाइम के दरमियान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ख़ास किस्म का स्टार आसमान के ऊपर चमकते हुए देखा या जैसे तारा चमकते हुए देखा और उसके बारे में उनकी जो प्रोफ़ेसी थी वो ये थी कि ये सितारा सिर्फ़ उस वक़्त नज़र आता है जब प्रॉफ़िट्स पैदा होते हैं। यानी जब अम्बिया अलैहिस्सलाम में से किसी भी नबी की पैदाइश होती है तो एक ख़ास सितारा आसमान पे नज़र आता है। तो ये सितारा कुछ मंक्स ने या कुछ रबाइज़ ने यहूदियत के जो वो थे वो रबाइज़ कहलाते और मंक्स ने उन लोगों ने बाकायदा देखा आसमान के ऊपर और ये चीज़ थी। तो दिस इज़ द बर्थ टाइम ऑफ सय्यिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कुछ चीज़ें थी जो आज की क्लास में मैं आपके सामने रखना चाहती थी। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसमें से कितना कुछ ऑथेंटिक है और क्या-क्या कुछ ऐसा है जो हमें लेना चाहिए, जिस पे हमें यकीन करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ है जो हमें नहीं लेना चाहिए। मैं तो वैसे मेंशन कर चुकी हूँ दरमियान में लेकिन मैं दोबारा आपके सामने रख देती हूँ कि मैं तो इस पोज़ीशन में नहीं हूँ बहरहाल कि मैं कोई अपनी ये बात बता सकूँ कि इसमें से क्या सही है और क्या नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी किताबों में ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने मेंशन की हैं, ये तमाम ओल्ड अरब सीरा के जो स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने अपनी किताबों में मेंशन की हुई हैं और वो लीडिंग सीरा स्कॉलर्स हैं। ये भी नहीं कि कोई आम, कोई गुमनाम या किसी ने मतलब नॉर्मल कोई किताब लिखी हो। बड़े-बड़े लीडिंग स्कॉलर्स हैं एंड दे स्टिल फाइंड दीज़ इन्फॉर्मेशन ये जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर शेयर हुई, अगर वो इसको बेनिफिशियल समझ रहे हैं तभी मेंशन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इसीलिए पढ़ते हैं और तभी हर किताब इनको लेके आती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना और उनका आना कितना मुबारक था और वो कितना मिरेकलस था और वो अपने अंदर क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या राज़ पनाह किया हुआ था, इसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी हमें मिल जाती है, थोड़ा-सा पता चल जाता है। तो दिल में एक मुझे तो हमेशा ये फीलिंग इसी तरह आती है, मैं इस बहस में जाती ही नहीं हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ ना ये चीज़ें, तो आई एक्चुअली स्माइल। मैं आज भी पढ़ते हुए जब सुबह मैं पढ़ रही थी इन चीज़ों को तो दोबारा मैं ऑल द टाइम स्माइलिंग मेरा एक ही मैं इस डाउट से जाती ही नहीं हूँ कि ये बात सही है या नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं भई क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मतलब हम में से कौन है इस जगह पे इस पोज़ीशन में कि हम इसको क्वेश्चन करके कह सकें कि नहीं ये नहीं हो सकता। मेरा रब जो चाहे वो हो सकता है और सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कोई आम मकाम था। तो उनके लिए अगर कुछ ख़ास हुआ है, तो वो बिल्कुल हो सकता है और वो हुआ होगा। तो बस इसी पे हम लोग बंद करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।